So winning an award is always a special moment and we all are here for that special moment. जी हाँ. पर उसी के साथ साथ एक और बहुत ही खास मोमेंट है यहाँ पे. Well, वो किस चीज़ का मोमेंट है बताना चाहूँगी. Well, we all know that we all are here celebrating this award ceremony all together with all of us under this one roof in Ashoka Chanakyapuri, right? तो ये बहुत ही खूबसूरत मोमेंट है जो आज आप लोग और हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं. बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आज का दिन और भी खास है. क्यों? उसका रीजन ये है कि आई गेस यू मस्ट हैव नोन दैट दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर, राइट एंड फेस्टिविटीज चल रही हैं. बड़ा ही खुशनुमा माहौल है पूरे हिंदुस्तान में. और आई गेस हिंदुस्तान की जब मैंने बात करी तो हिंदुस्तान की विभिन्न जगहों से काफ़ी लोग आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राइट? फ्रॉम लखनऊ, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम मुंबई, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर यू पीपल आर. बस मैं इतना जानती हूँ कि आज हम इस एक छत के नीचे बैठे हैं इस मोमेंट को, जी हाँ, अवार्ड सेरेमनी को तो सेलिब्रेट कर रहे हैं, पर दिवाली का जो एक खूबसूरत सा पल है आज इसको भी सेलिब्रेट करने वाले हैं. तो लेट्स नॉट स्टार्ट दिस डे विद द applauses. नो, कम से कम मेरी बात तो सुन लेते. मैंने कहा लेट्स नॉट स्टार्ट दिस डे विद applauses. Let's not start this day with your energy. Alright. So yes, जी हाँ, मैंने बोला कि let's not start this day with applauses. Let's not start this day with your energy. Let's start this day with a big smile and a big hug. How? Well, मैं नहीं जानती कि आप लोग आपके आजू बाजू वाले लोगों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पर मैं इतना जानती हूँ कि जब भी दिवाली सेलिब्रेशंस की बात होती है तो हमेशा हम घरों में नमस्ते करते हैं या एक दूसरे को गले लगाते हैं. तो आज हम ये दिन की शुरुआत एक दूसरे को दिवाली की बधाइयाँ देते हुए, जी हाँ, अवार्ड सेरेमनी की भी बधाइयाँ जरूर देंगे, पर दिवाली की बधाइयाँ देते हुए एक दूसरे को गले लगाकर करेंगे. हाँ, बट लेट मी टेल यू, इफ यू आर सिटिंग बिसाइड अ लेडी एंड इफ यू डोंट नो हर देन यू कांट हग हर. Acha, he's asking me why. So yeah, this is discrimination. You need to ask her. If she allowed you, then you can. But otherwise, don't come at me when she slap you back. Yeah, that is what I'm going to say. And for this special moment, ladies and gentlemen, I request all of you to please rise up from your seats for this moment. मैं आप सभी से गुजारिश करूँगी अपनी सीट से एक मिनट खड़े हो सकते हैं हम सभी. I request all the chief guests also. Sir, I request all of you to please stand up for a moment. और इस दिन की शुरुआत करेंगे, मैंने कहा था, एक खूबसूरत सी स्माइल के साथ और एक प्यारी सी हग के साथ. जी हाँ, दिवाली आने वाली है. जी हाँ, कल धनतेरस होने वाला है. बड़ा ही खूबसूरत मौका है, बड़ा ही खूबसूरत पल है. तो आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगी कि आपके आजू या बाजू में जितने भी लोग हैं, आप लोग उनको हग कर सकते हैं just for a minute and you can say happy Diwali to all of you, each other. Come on everybody. And I request the team of WPU and you, can we hug each other? Can we? Mr. Ashwini, can we? Come on everybody. And can we say this back to me because I am saying this to you as well. Mahalakshmi Namostubhyam. Mahalakshmi Namostubhyam Namostubhyam Sureshwari. Thank you so much. Well, a very happy and prosperous Diwali to all of you. Can we say it back? Happy Diwali. अच्छा नाम तो जान लो. Do I need to tell my name? Alright, now let me tell you my name because you don't know me for sure. So yeah, my name is Bhavna Kadeva. Can we say it louder? Happy Diwali to you, Bhavna. Can I hear from you? I can't hear you. No, not like this. On the count of 3, 2, 1, let's say it all together. 3, 2, 1. Can we? Happy Diwali. Kya baat hai. Thank you so much. Well, this was a warming session for you all, ladies and gentlemen. Thank you so much for giving up your energy in this moment. Come on, WPU और NU की team जो हमारे साथ मौजूद है. Can we say it back? Happy Diwali to me, man. Yeah, that's like this. So this is what we want. All right. Well, yes. And yes, ladies and gentlemen, let's start this day with the welcome of our chief guest. And we are indeed honored to have these handsome people in this evening, in this day, everyone. And for this, I request all of you to please give a big round of applause to none other than Sri Jay Prakash Nishal,
जी हमारे बीच में मौजूद हैं फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम रुद्रपुर। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और सर जी हाँ, हमारे साथ बीच में मौजूद हैं श्री श्याम जाजू, फॉर्मर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी। कैन वी गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज एवरीबॉडी? All right, so yes, sir. Yes, we are having ACP from Mumbai. He's none other than Mr. Narsingh Yadav. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. And not to forget, Honorable Union Minister of State of Panchayati Raj, Government of India, Shri Kapil Patil ji. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. All right, so before we move forward, before I talk about this day, before I talk about you people, ladies and gentlemen, पहले तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां आप लोग अपने लिए बजा दें, because you guys are giving a beautiful presence to this day. Yes, thank you so much for taking out your precious time to make this day very special by you. Everybody, can we? And yes, ladies and gentlemen, now it's time to felicitate those who are giving their presence up in this evening, presence up in this day, everybody, to us. And to this, I request everybody from our team to please get ready for the felicitation. Today, we are indeed honored to have an inspiring personality between us, ladies and gentlemen. A big round of applause to none other than Yes, ladies and gentlemen, today we are indeed honored to have these inspiring personalities between us. And for this, once again, I request our team to present our venerated chief guest with a memento as an expression of our gratitude. And I request our worthy chief guest to please accept these bouquets as a token of delight and respect we owe you for being significant part of this exciting award ceremony. Thank you. I request all of you to please give a big round of applause for all these moments. Thank you so much, sir, for being a part of our award ceremony for this abiding moment and raising our day with your presence. Thank you so much for this moment. Well, कहते हैं कि देश सर्वप्रिय, राष्ट्र सर्वप्रिय। तो जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस दिन की नेशनल एंथम के साथ। एंड फॉर दिस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स एंड आवर चीफ गेस्ट टू प्लीज काइंडली राइज अप फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव पोजीशन। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे
वंदे। थैंक यू सो मच। All right, well, for this moment, I request श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल जी से मैं गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप हमारे इस मंच की ओर आए। आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पंचायती राज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं आपसे गुजारिश करूंगी सर कि आप हमारे इस मंच की ओर आए और 2 शब्द हमारे इस दिन के लिए, हमारे इन लोगों के लिए बोलें। थैंक यू। नाम कैसे दूंगा मैं? नाम लेके दिया उसने ना। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के माध्यम से आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर मंच पर उपस्थित विशाम जाजू जी, अंजनी कुमार, डॉक्टर तरुण कुमार रौतानी जी, जयप्रकाश मिश्र, नरहरि सिंह यादव जी, मेरे सामने बैठे हुए सारे पुरस्कार्थी, उपस्थित भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, सही मैं कहूँगा तो मुझे इस प्रोग्राम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन ये हमारी पत्रकार साथी है भावना, इनका इतना आग्रह था 2 दिन से कि आपको कुछ भी करके आना है। एक्चुअली मुझे उसने इनवाइट किया है, यहाँ से किसी ने इनवाइट नहीं किया है, लेकिन बड़ी खुशी हुई आप लोगों के बीच में आके, अच्छा भी लगा। आप लोगों का काम देखने के बाद निश्चित तौर पर गर्व महसूस होता है कि आप ऑनररी डायरेक्टर अवार्ड उनको और पुरस्कार का वितरण कर रहे हो। इस संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर तपन कुमार राउत राय जी इस शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे काम करने वाले लोगों को पुरस्कार देके उनको सम्मानित कर रहे हैं। मैं जब भी शिक्षा के प्रोग्राम में जाता हूँ तो अभी के बच्चों का नॉलेज जब हम लोग देखते हैं तो फिर हमारी याद आती है। जब कभी 10th क्लास के बच्चों को पुरस्कार देते हैं, जब 10th पास आउट करते हैं तो उनके मार्क्स होते हैं 98%, 98.5%, कोई 99%, ऐसे मार्क्स होते हैं। और फिर भी बच्चे घर पे जाके रोते हैं, मुझे 1% कम मिला, मुझे आधा % कम मिला। तो मैं उनको मोटिवेशन देने के लिए हमेशा कहता हूँ कि जाजू जी अभी के बच्चे इतने होशियार हैं, तो उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि जब हम लोग 10वीं में थे, अभी फिलहाल मेरी उम्र 26 साल है, अरे 62 है तो 26 कह ही सकता हूँ ना। हम लोग जब 10वीं में थे, जो आपको अभी मार्क्स मिले हैं उनको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे मार्क्स आते हैं। ये सच बात है। जब हम 10वीं में थे तो ये ही कोशिश में 10वीं पास तो होता ही नहीं था, उसको 2-3 मार्कशीट होती थी आगे। लेकिन अभी हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है, निश्चित तौर पर आज हमारे प्रधानमंत्री जब विश्व के किसी भी कोने में जाते हैं तो वहां पे उस देश को
विकास के माध्यम से आगे ले जाने के लिए हमारे भारतीय निश्चित तौर पर वहां पे आगे आते हैं। और जब वो मीडिया के सामने आके बोलते थे कि जब हम लोग आए विदेश में तो उस वक्त भारत में ये सारी सुविधा नहीं थी, लेकिन अभी हमारे मन में भी परिवर्तन हो रहा है कि अब हमारे में जो क्षमता है क्यों ना हम हमारे देश के लिए उसका उपयोग करें। तो कई ऐसे लोग हैं जो मीडिया के सामने आके बोलते हैं कि अभी हमें भारत में आके हमारे में जो क्षमता है हमारे भारत के विकास के लिए उसका योगदान देना है, ऐसी बात है। ये निश्चित तौर पर हमारे भारत की ये गौरवशाली बात है, क्योंकि हम लोग अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो कहाँ भारत को हम लोग देखते थे? राशन के दुकान के सामने लाइन के कतार में देखते थे, रेलवे के खिड़की के बाहर कतार में देखते थे, गैस सिलेंडर के कतार में देखते थे। ऐसी कई जगह है जहां हम भारत को देखते थे, लेकिन अभी खाली भारतीय नहीं, हमारा पूरा विश्व भारत को अभी चंद्रयान पे देखने लगा। ये सही मायने में देखा जाए तो हमारे शिक्षा की, हमारे साइंटिस्ट लोगों की, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में योगदान की ये करामत है। ये भारत अभी है बदलने वाला भारत। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम बदलने वाले भारत हैं। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं करूंगा, मेरा फ्लाइट है, मुझे जाना है मुंबई। लेकिन इस संस्था के सामने बैठे हुए सभी साथियों को मैं कहना चाहूंगा, अभी 21वीं सदी में हम लोग हैं। 21वीं सदी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सदी है। जो पुराने लोग पढ़ते थे तो ग्रेजुएट हुआ तो हो गया, तो क्वालिफाई हो गया। अभी खाली ग्रेजुएशन होने से आदमी क्वालिफाई नहीं होता है। अभी ये सारा जो एजुकेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो बच्चों में होना जरूरी है। तो अभी क्या 2 साल का बच्चा भी यूट्यूब सब देखता है। अगर टेक्नोलॉजी अभी बचपन से ही लोगों के मन में आ रही है, लेकिन एक बात उसके साथ ये भी ध्यान में रखनी पड़ेगी कि टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, 2 स्थानों का डिस्टेंस कम हुआ। 2 स्थानों का डिस्टेंस कम होने से इंसान और इंसान की दूरी बढ़ी। तो हमें ये बात भी ध्यान में रखना है कि टेक्नोलॉजी को हम लोग